Please tolerate. The meeting is being getting live streamed. चलिए लाइव स्ट्रीम से थोड़ा डर लगने लगा है सबसे विल अप्रूव केस स्टिल O descendant of Bharat at that time Krishna smiling in midst of both the armies. O descendant of Bharat that time Krishna smiling in midst of both the armies spoke the following words to the grief stricken Arjuna. Means इसके पहले Arjuna was speaking. Now after this words Lord Krishna is going to speak. So let us see what Krishna is going to speak. श्री भगवान उवाच अभी तक भगवान मतलब अर्जुन के बहुत सारे क्वेरीज उसके परप्लेक्स्ड सिचुएशन को सुने और उसके भगवान मतलब एक्चुअली यहाँ पर शो करना चाह रहे थे जैसे मैंने सुना है मतलब अभी तक प्रभु जी और बाकी मतलब डिवोटी से कि व्हाट वाज द सिचुएशन हियर व्हाई कृष्णा हैज नॉट येट स्पोकन एनीथिंग जैसे यूजुअली व्हाट वी डू कि मतलब कहा जाता है कि एडवाइसेस आर वेरी इजीली गिवन तो एडवाइस देने के लिए अगर भगवान मतलब उस टाइम में पर्सनालिटी होते तो ही कुड हैव डन दैट क्वाइट मच बिफोर तो व्हाई भगवान इतना समय क्यों लिए यहाँ तक अभी आने में इतना बोलने में सो बेसिकली इट वाज द फैक्ट बिकॉज भगवान ये शो करना चाह रहे हैं कि ही फर्स्ट वांटेड आपका मतलब लिसनिंग एबिलिटी ही फर्स्ट वांटेड द पर्सन टू सरेंडर टू अंडरस्टैंड सिचुएशन दैट इट इज नॉट इन हिज कंट्रोल देन द सिचुएशन वेयर कम्स वेयर ही इज गोइंग टू सरेंडर एंड टोटली सरेंडर के बाद भगवान टेक्स द रोल ऑफ अ कंसल्टेंट और इंस्ट्रक्टर नाउ ही इज गोइंग टू गाइड अब भगवान कहते हैं यहाँ पर अगर आप लोग एक साथ दोहरा पाए तो इट विल बी बेटर असोचयन अनवसोचस्त्वं प्रज्ञवादांश्च भाससे गत्सुन अगत्सुन च नानुसुचन्ति पंडिता कोई और भी इसको बोलना चाहेगा इस वर्ष को एनीबॉडी जो यहाँ पर बहुत सारे मौजूद है अभिषेक प्रसाद अभिषेक कुमार प्रज्वल कुमार आदर्श कुमार एनीबॉडी हम लोग सब मिलकर करेंगे तो ये थोड़ा इंटरेक्टिव सा रहेगा मतलब मेरे को भी सीखने को मिलेगा आई एम आल्सो एनीबॉडी दैट वुड लाइक टू स्पीक दिस थिंग जी प्रभु मैं जी जी कौन आदर्श प्रभु प्लीज श्लोक रिपीट करने ना प्रभु प्रभु can you please read the translation otherwise we have very less time half an hour only left so instead Okay. of this please read the translation then after I can read this word meaning Okay, Please. Prabhu. The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy for grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. Yes. तो जैसे यहाँ पर है श्री भगवान वाचा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड असोचे नॉट वर्दी ऑफ लेमेंटेशन अनवसोचा यू आर लेमेंटिंग फ्रॉम यू प्रज्ञा वदन एक्चुअली जैसे हम ये वर्ड मीनिंग के हिसाब से जाते हैं तो ये जो श्लोकास हैं बहुत मतलब इजी लगती है पढ़ने में प्रज्ञा वदन मीन्स लर्नर टॉक्स च ऑल्सो भास से स्पीकिंग गता मीन्स लास्ट असन असन इज लाइफ agata that is not past cha means also never means na anusochanti that is lament and pandita that is the learner अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान बता रहे हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड सेड while speaking learned words you are mourning for what is not worthy of grief those who are wise lament neither for living nor for the dead in the purport anybody want to अभिषेक प्रभु अभिषेक प्रशांत प्रभु प्रज्वल आदर्श प्रभु you also जी प्रभु जी ठीक है 2.11, right, Prabhu? The Lord at once took the position of the teacher and is the student, calling him indirectly a fool. The Lord said, "You are talking like a learned man, but you do not know that one who is learned, one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition, as explained in the knowledge means to know matter and spirits and the
Arjun argued that religious principles should be given more importance than politics. But he did know the knowledge of matter, soul, and the supreme is even more important than religious formulas. And because he was lacking in the knowledge, he should not have imposed himself as a very learned man. As he did not happen to be a very learned man, he was consequently lamenting for something which was unworthy for lamentation. The body is born and is destined to be Sorry प्रभु जी, यहाँ पर vanquished लाइट चले गया on था। tomorrow. Therefore, the body is not as important as the soul. One who knows this is actually learned, and for him there is no cause for lamentation, regardless of the condition of the material. Krishna. Okay, yes, Quran। तो यस, यहाँ पर हम जैसा देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान ने जो पोजीशन यहाँ पर लिया है, आप लोग देख पा रहे हैं ना मेरे को? हरे कृष्णा। एक्चुअली लाइट चले गए यहाँ पर अचानक से। I'm really sorry. I'm in Kolkata right now. तो पता नहीं अचानक से कोलकाता में तो ऐसा नहीं होता है, बट नो इश्यू। तो हियर द सिचुएशन जैसे हम देख पा रहे हैं कि भगवान जैसे यहाँ बता रहे हैं कि भगवान हैज टेकन द पोजीशन ऑफ अ टीचर, एंड भगवान इज नॉट एक्चुअली एन ऑर्डिनरी टीचर, वी ऑल नो। बट व्हाई व्हाट वी आर एबल टू सी हियर इज दैट कि Krishna is here giving advice, and here in this situation, Krishna is not basically thinking. जैसे यहाँ पर पर्पल में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, he is not he is meant for chastising his student, but see how he is saying him indirectly a fool. कि बता रहे हैं कि you are talking like a learned man, but you do not know one who is learned, one who knows what is body and what is soul. ये बहुत important distinction भगवान यहाँ पर देना चाह रहे हैं। So indirectly यहाँ पर भगवान मतलब indirectly he is saying fool to Arjuna, and he is giving the seed of spirituality in which basically the difference of soul and the body is first being given. Then after it is said here that you are talking like a learned, but you do not know one who is learned, one who knows what is body and is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition. फिर अभी जैसे आगे श्लोकास में आएंगे, अर्जुना argue that religious principles should be given more importance than politics or sociology, but you do not know the knowledge of matter soul. So in this way, Bhagavan यहाँ पर seed of spirituality he had given, and he basically after somehow or other indirectly and by his expertise, by his maneuverance, he is trying to teach here the Arjuna, and through Arjuna he is indirectly teaching us also that how this knowledge of soul is that knowledge which is means by coming into that knowledge we are able to get some higher approach in our life. Is it okay, Prabhuji? One who knows is this actually learned, and for him there is no cause for lamentation regardless of the condition of the material body. And I invite actually Prabhuji, यहाँ पर बहुत सारे हमारे सीनियर्स मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि in between or at the end whatever you feel like you can add something if you wish to. आप voluntarily मेरे को बोल करके यहीं पे if you want to add something so that it can enlighten all of us who are present here. So we would like to move on to the next. Anybody want to add something here? We can go to the next look up. Okay. 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 Now the next loka it is point 12. Okay. Okay. Before that, कुछ points मैंने बनाए थे, तो मैं बैक में जाना चाहता हूँ तो पॉइंट 11 में एक क्वेश्चन है जैसे आप लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या प्रभु? स्क्रीन शेयर आप स्क्रीन शेयर हो गया क्या? शेयर हाँ 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 शेयर हुआ है, रुक गया?
हो रहा है ना bro? Haribo? Yeah, now it's Okay. So before moving on to next sloka bro, there are few highlights I want to just do. जैसे यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि जो इमोशंस अभी तक अर्जुन मतलब ने शो किए हैं अभी तक. So basically, can we say that emotions are false? I'm just asking these questions to uh, Abhishek, Rajwal. One more person, Adarsh, yes. So these questions are for everybody who are there. So are these emotions are false? Means these emotions have no value in life because Arjuna is totally confused. So is this emotion is having any sort of value? क्या है फिर ऐसा इमोशनल होना अपने लाइफ में क्या मतलब सही रहता है नहीं रहता? Anybody want to add something? हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम. अभिषेक प्रभु कह रहे हैं. ब्लू Yes, जैसा please, भी बताइए. सिचुएशन है अर्जुन के लिए, तो इस सिचुएशन पे उसका इमोशनल होना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रभु ये सही हो सकता है प्रभु. Correct. Because if That is he true. does not have the knowledge about the situation, तो उनको ये पता नहीं है कि एक्चुअली मेरे को कैसे उसको हैंडल करना है और उसके बारे में उसको जानकारी ही नहीं है, और तब वो थोड़ा इमोशनल होगा तो देन इट इज ओके, बिकॉज फिर भगवान उनको मतलब समझाएंगे कि व्हाट द राइट थिंग टू डू. Yeah, true. Very true. Basically, जैसे इस situation पे I was hearing one lecture of Chetan Chandra bro just कुछ देर पहले ही. So he added very one nice thing that's why I want to share. There he said that actually emotions are not false. He said that emotions can be uneducated. There are two types of emotion, educated and uneducated. Basically, जैसे हम कहते हैं ना कि अभी तक अर्जुन को वैसे क्यों बोल रहे थे कि you're talking so big things. Basically, many time we also हम लोग भी बहुत कुछ ऊपर नीचे जिसको हम पोस्टिंग कहते हैं फेंकना कहते हैं. तो we can do that thing. ऐसा मतलब चेतन चंद्र बोल रहा था. These are not my words. So he was particularly mentioning that it was verbalizing knowledge and without internalizing. Then it is totally uneducated emotion. Means we are just speaking anything, but we are not meaning that thing. That is not making any sort of transformation or any sort of changes within us. Then it is just a verbalizing knowledge without any sort of internalization. So this sort of things are emotions, and which are actually uneducated emotions. So here in this case, it will be not fruitful for us. Rather, emotions are there. Emotions are actually not false. Actually, Prabhuji has said emotions are there, and it can be very means vary with person to person. But basically, if we are passing that emotions through some membrane of education with knowledge, then that is going to be fruitful. Otherwise, it is just a useless emotion. को कभी भी कुछ भी हो सकता है. And then after one very important thing, it is highlighted here that अश्विन जो हम देखते हैं ना, अश्विन जैसे यहाँ पर कहा गया है कि गताशुन अगतसुन च नानु सुचंती पंडिता. तो अश्विन का मतलब कोई जानते हैं क्या होता है? एनीबॉडी? गताशुन, गता मतलब चला गया, अगता, और अश्विन इसे यहाँ पर बताया गया लाइफ. देख पा रहे हैं आप? हरे कृष्णा. Is I'm audible? yes, sir. हाँ. So basically what is meant by this life? Life मतलब जैसे कहा जाता है कि गतासुन. Gatasun means something has passed. Means life has passed. So what we can say means हम कैसे इसको बता सकते हैं कि life has passed means what is past? So basically जैसा प्रभु बता रहे थे, I was hearing his lecture. He was mentioning that प्राण वायु has passed. So can you please means anybody have any knowledge of what is प्राण वायु? Hare Krishna. No? Anybody is having any knowledge of what is prana vayu? It was mentioned there that basically means katashun means something has passed. So asun means life is there. So means life has passed. So life has passed. It means that
बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जैसे अगर कोई somebody leaves this world, so we said that his soul has left the body. So basically what is there, the soul which is getting holded by pranavayu. So ठीक है, without delaying much, I just want to conclude that basically प्रभु जी बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ बता रहे थे कि there is subtle body which we are having, that is mind, intelligence and false ego. So mind, intelligence and false ego, this subtle body is actually the link between our spiritual body and our gross body. तो जैसे हमारा जो spiritual जो हमारा शरीर है, spirit, and जो gross body है हमारा, that is our material body, मतलब outside body, तो उसके बीच का जो linkage है, that is our subtle body, that is mind, intelligence and false ego. And जो ये subtle body है और जो ग्रॉस बॉडी है उसके बीच का जो लिंकेज है, मतलब सटल बॉडी मींस माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, एंड आवर ग्रॉस बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, दैट इज आवर सटल बॉडी एंड स्पिरिट सोल. इसके जो ये सॉरी स्पिरिट सोल एंड ग्रॉस बॉडी, इसके बीच का लिंकेज है सटल बॉडी, और सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी का लिंकेज है दिस प्राणवायु. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. Means pranavayu is basically Hare the Krishna, linkage can in you between. explain it again, please? Yeah. This is a very अच्छा point. Means very. And मेरे को actually चेतन चंद्र के classes इसलिए अच्छे लगते हैं. Pradeep recommended me some of the lecture. I heard whatever I was able to. So but it was very means logic giving. तो थोड़ा अच्छा लगता है. And I recommend all of you also to go through those lectures. आपको बहुत सारे insights मिलेंगे. Basically उन्होंने कहा था उसमें कि सटल बॉडी जो हमारा होता है, जैसे हमारे पास 3 बॉडीज हैं, जैसे हमको पता होना चाहिए. लेयरिंग जो है हमारे बॉडी का, बाहर का जो बॉडी हम जो देख पा रहे हैं, जो 5 एलिमेंट से बना है, दैट इज अवर ग्रॉस बॉडी. इसमें हमारा जो फ्लैश मसल ये सब जो है, ये 5 एलिमेंट्स अर्थ, फायर, ईथर और एयर, ये सब से बना है. तो ये हमारा ग्रॉस बॉडी है. उसके बाद हमारा आता है सटल बॉडी. सटल बॉडी में आता है माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. ये हमारा सटल बॉडी. और फिर उसके अंदर आता है हमारा सोल. तो ये जो 3 जो बॉडीज हैं, इसके बीच में कुछ लिंकेजेस हैं. तो जो क्रॉस बॉडी जो है हमारा, जो क्रॉस बॉडी और जो स्पिरिचुअल बॉडी है, जो एकदम लास्ट जो स्पिरिट सोल है, उसके बीच में जो आता है दैट इज सटल बॉडी. समझ पा रहे हैं? ग्रॉस बॉडी और जो स्पिरिट सोल एकदम अंदर बैठा है, उसके बीच में जो आ रहा है लिंकेज, वो है सटल बॉडी. समझ पा रहे हैं आप लोग? प्लीज रिस्पॉन्ड. हरे कृष्णा. ओके. एंड और जो हमारा सटल बॉडी है और जो हमारा ग्रॉस बॉडी है, तो उसके बीच का जो लिंकेज है दैट इज प्राणवायु. अब कैसे आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे अगर हम गुस्सा होते हैं, व्हेन वी बिकम एंग्री, सो वी फील दैट हमारा जो ब्रीदिंग है वो इंक्रीज हो जाता है. तो व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज आवर एंगर इज आवर सटल इमोशंस, सटल बॉडी, एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग इन आवर आउटसाइड ग्रॉस बॉडी थ्रू दिस लिंकेज ऑफ प्राणवायु. दिस वायु इज गेटिंग इंक्रीज्ड. और वैसे ही जैसे देखते हैं कि अगर हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं, तो उसमें यही जो वायु होती है बहुत स्लो हो जाती है. जैसे हम देखेंगे बहुत स्ट्रेस्ड पोजीशन पे है, तो वी आर लाइक वी ट्राई टू ब्रीथ स्लोली, डीप ब्रीदिंग लेते हैं हम. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस व्हिच चरण चरण वाज हाइलाइटिंग, एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Okay, so that's why Katashun here means that प्राण वायु has lost. जैसे भगवान जब पूतना वाला पास टाइम जब आ रहा था, तो पूतना वाला पास टाइम में भगवान जो कह रहे थे ना कि मीन्स या लाइक सॉरी, भगवान इससे कह रहे थे कि भगवान हैज टेकन द लाइफ ऑफ पूतना बाय सकिंग हर ब्रेस्ट. सो बेसिकली फ्रॉम दैट टाइम ही हैड टेकन द प्राण वायु आल्सो. या नॉट डिलेइंग मच. रेडी. सेकंड इट इज 2.12. सो अभी जैसे भगवान ने 2.11 में बता दिया ये कि आप इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो. So it is a sign of that you are confused totally. Now in 2.12, भगवान बहुत important message देता है कि how our soul is going to be eternal. तो भगवान कह रहे हैं ना तब एवं जातु नासम, ना तब त्वं नेमे जनाधिपा, ना चैव ना भविष्यामः, सर्वे वायम अतम परम. Anybody want to read the translation?
जल्दी जल्दी कोई पढ़ लीजिए इनको। राजीव प्रभु, अभिषेक प्रभु, रजल। Hare Krishna Prabhuji. Yes, please read the translation. And Never was, next person. Yes, please. uh, translation. Yes, yes. Translation and purport both you have to read. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. Shall I So this start was the purport? translation. Yeah, sure. Okay. In the Vedas, in the Katha Upanishad, as well as in the Srivasta Vatara Upanishad, it is said that the Supreme Personality of Godhead is the maintainer and innumerable living entities in terms of their different situation according to the individual work and recreation of work. That Yeah, sure. Supreme Personality of Godhead is also by his planetary promotion portion alive in the heart of every living entity. Only saintly persons who can see within and without the same Supreme Lord can actually attain to perfect and eternal peace. हो गया प्रभु जी. Next chapter में ये पढ़ रहा हूँ। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम यो विधति काम तम आत्मा स्तम ये अनुपशंति धीरज तेषम शांति शाश्वत मित्र सम। जब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि never there was a time when I did not exist, nor you, nor all these things, nor in the future shall any of us cease to be. तो आप लोग इसमें समझ सकते हैं कि बेसिकली भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ भगवान किस चीज को डिनोट करना चाह रहे हैं बताना चाहेगा कि नेवर देयर वाज अ टाइम जिसमें हम एग्जिस्ट नहीं करते थे, ना ही ये जो राजा यहाँ मौजूद थे। बिकॉज अभी तक तो जो अर्जुन है वो कंफ्यूज चल रहा है कि इनको कैसे मारेंगे, तो मेरे रिलेटिव्स है। भगवान उसको पहले बोल रहे थे कि तुम यार इतना बड़ा बड़ा बात कर रहा था, बट अभी अचानक से ये ऐसे कर रहे हो। तो अचानक से भगवान जो ये वाला पॉइंट बोले कि ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता था, नहीं तुम, ना ही ये किंग, नॉर इन द फ्यूचर एनी ऑफ अस सीज टू बी। तो इसमें से भगवान कुछ बताना चाह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट जो चीज है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतलब क्या ऐसा चीज है जिसके लिए मतलब भगवान जिस चीज को बेसिस बना के ये कह रहे हैं, तो शेयर करना चाहेगा भगवान किस चीज को डिनोट कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। तो प्लीज से हु इज स्पीकिंग। यहाँ पर जो प्रभु भगवान ये बोल रहे हैं कि नेवर आई वाज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट, नाउ यू आर नॉट, नॉर ऑल दीस थिंग्स एंड नॉर द फ्यूचर एनी ऑफ अस नीड्स टू बी। यहाँ पर प्रभु भगवान इंडिकेट कर रहे हैं तो मतलब सोल को, मतलब बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं थे और ना ही तुम नहीं थे। हम लोग आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, और किन्हीं का मतलब जाना मतलब उन पे उस पर्टिकुलर रीजन पे शोक करना, तो दैट इज नॉट राइट। तो बिकॉज आत्मा जो है वो इटरनली शाश्वत रहता है, वो उनके लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। तो वो कभी ना कभी जिस इंसान के प्रति वो शोक कर रहा है, तो वो कभी ना कभी पहले भी था, इसमें भी फ्यूचर में भी होगा। तो वही वही कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो इटर्नल है एंड ऑलवेज लिविंग। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक्स अ लॉट अभिषेक ब्रो। एंड आप लोग इंटरनली वेरी राइटली ये सजेस्टेड कि भगवान इसमें बेसिकली बताना चाह रहे हैं इट इज द एटर्नलिटी ऑफ द सोल, कि क्या एटर्नलिटी है कि नहीं, बिकॉज और क्या ऐसा चीज है जो मतलब भगवान इसमें कॉमन चीज बताना चाह रहे हैं, दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज द एटर्नलिटी ऑफ द सोल। थ्रू दिस इंपॉर्टेंस ऑफ सोल भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि बिकॉज वी ऑल आर सोल, तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का सेकंड सीड, दैट इज वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल, भगवान यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसके बाद गोपाल जी प्रपंच से बता रहे हैं कि दैट इज स्वेत स्वतर उपनिषद, भगवान Supreme Personality of Godhead is the maintainer of the innumerable living entities. In terms of their different situation according to the individual work and reaction, the Supreme Personality of Godhead is also by its plenary position alive in the heart of every living entity. Basically,
सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड सोल, और अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आने वाला है, सुपर सोल। तो पहले तो भगवान हम लोग को बॉडीली कंसेप्शन से स्पिरिचुअलिटी पे सोल के जरिए लेके आ रहे हैं, एंड अब सोल एंड सुपर सोल के बारे में यहाँ पर परिपक्व बता रहे हैं प्रभुपाद जी। Then the next point of view lies in the state that the same Vedic truth given to Arjuna is given to all the person in the world who pose themselves as very learned, but actually, uh, but factually have a poor fund of knowledge. The Lord clearly uh, says clearly that himself, Arjuna, and all the kings who are assembled on the battlefield are eternally individual beings, and that the Lord is eternally the maintainer of the individual entities, both in their condition and their liberated situations. Supreme Personality of Godhead is the supreme individual person, and Arjuna, the Lord's eternal associate, and all kings assembled there are individual eternal person. If not that, they did not exist as individuals. They didn't exist as individuals in the past, and it is not that they will not remain eternal persons. Okay, what is that? It is not that they didn't exist as individuals in the past, and it is not that they will not remain eternal persons. Their individuality existed in the past, and their individuality will continue in the future without interruption. Therefore, there is no cause for lamentation for anyone. The मायावादी थ्योरी, यस, एक और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, दैट इज ऑफ मायावाद। अभी तक तुम समझ पाए कि भगवान यहाँ पर सोल को अभी तक यहाँ पर जैसा डिस्क्राइब किए हैं, सेम वैदिक ट्रुथ्स यहाँ पर भगवान बाजी बता रहे हैं, दैट इज ऑफ एटर्नलिटी ऑफ द सोल, एटर्नलिटी ऑफ द पर्सनालिटी। यस, बट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी यहाँ पर बाजी आने वाला है, दैट इज ऑफ मायावादी थ्योरी, दैट after liberation the individual soul separated by the covering of maya, that this is Mayavadi theory, that after liberation, individual soul is separated by the covering of Maya or illusion, will merge into the impersonal Brahman and lost its individual existence, is not supported herein by Lord Krishna. Basically, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसा आप बता रहे हैं कि जैसा मैं पहले से एग्जिस्ट कर रहा था आप भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और आप एक है, भगवान कहना चाह रहे हैं। ये नहीं कि मतलब अभी जिस पे विवाद उड़ गया है कि मतलब आप जो भी करो जब तो मत, मतलब नहीं वो पॉइंट्स को बोलना चाहूंगा, बट या दैट इज द पॉइंट। अभी जैसे बहुत सारी जगह पे जो मायावादी थ्योरी है कि आप कुछ भी करो यू कैन कम टू गॉड, सब रास्ते भगवान की तरफ जाते हैं, दैट इज नॉट द फैक्ट। ये चीज को एस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, बिकॉज जो उपनिषद, एज फार एज आई नो, पीपल हु आर मायावादीज, इधर इट मे बी एनी ऑर्गेनाइजेशन, they believe in Upanishad because Upanishad say that these are the Smritis, I guess. There are two types of shastras. There are Shrutis and Smritis. So Shrutis basically जो स्वर्ण के मतलब सुन के disciple succession में आ रहा है, and Smritis that is given through this Vedas and all these are coming Smritis. So ये जैसे उपनिषद वगैरह में उसी में काउंट होता है. That's why the Mayavadi support this thing. And they, why did they not support this Shrutis? इसमें भगवान का पर्सनल फॉर्म ये सब बताया जाता है, तो इसलिए जो मायावादी हैं वो उपनिषद को सपोर्ट करते हैं। और इसलिए देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे बहुत सारे परपोर्ट्स हैं, मतलब ऐसे हैं, बहुत सारे वर्सेस ऐसे हैं जिसमें डायरेक्टली भगवान अपने पर्सनल फॉर्म को नहीं बता रहे, मतलब इसको किसी भी तरह से वो कर सकते हैं, मतलब मोल्ड कर सकते हैं कि भगवान इसमें पर्सनल फॉर्म क्या है। इस चीज को यहाँ पर खंडन कर रहे हैं प्रभुपाद जी टोटली कि दिस इज नॉट द थिंग कृष्णा इज सेइंग, nor is this theory that we only think of individuality in the condition state supported herein. ये ऐसा नहीं है कि हम जो है वो इंडिविजुअल सोल है। Krishna clearly states here in that in the future also the individuality of the Lord and others as it is confirmed in the Upanishad will continue. कि जो हम हैं वो तो है ही, तो वी आर एक्चुअली इंडिविजुअल सोल, और ऐसा नहीं होने वाला कि हम इंडिविजुअल सोल्स आगे जाकर के मिक्स होकर के कोई पर्सनल ब्रह्मांड में और फिर आप भी भगवान और हम भी भगवान और हम सब भगवान, ऐसा नहीं होने वाला। हम सब सेपरेटेड है, इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, एंड मतलब अलग है। इट्स नॉट लाइक वी ऑल आर सेम कि मेरा सोल और आपका सोल और हम सबका सोल मिलके एक सोल होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। सो वी ऑल आर इंडिविजुअल एंड हमारा सबका एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। So in coming days, we are going to come. Prabhupada ji इसको एक brief introduction दे रहे हैं. This statement of Krishna is authoritative because Krishna cannot be subject to illusion. If individuality were not a fact, then Krishna would have not stressed it so much. When for the future, Mayavadi may argue that the individuality spoken by Krishna is not spiritual but material. Even accepting the argument that individuality is material,
then how can one distinguish Krishna's individuality? Krishna affirmed his individuality in the past and confirms his individuality in the future also. मीन्स भगवान यहाँ पे अपनी इंडिविजुअलिटी को साबित किए वहां पर, जैसे गोवर्धन उठा दिए या फिर ऐसा कहा जाता है कि क्वालिटेटिवली वी एंड भगवान आर सेम. जैसे H2O in a pond is the water, and same on our bottle is the same water having same configuration, but quantity wise in the reservoir the water is quantitatively quite much more than which is there present in our bottle. So these are the two different things. We can control a bottle, we can throw bottle here and there, but we cannot do that with the pond and ocean. ऐसा नहीं कर सकते हम अपने हिसाब से लहरों को बुला दें और कुछ ऐसा कर. We cannot do that. So he has confirmed here the individuality in many ways, and impersonal Brahman has been declared to subordinate to him. Krishna has maintained spiritual individual all along. If he is accepted as an ordinary conditioned soul in the individual consciousness, then his Bhagavad Gita has no value as authoritative scripture. A common man with all the four defects of human frailty is unable to teach that which is worth hearing. Yeah, correct. So, Haji, actually, Mayavadi को यहाँ पे बता रहे हैं कि how Mayavadi they think that with their four defects they are able to understand. That is not possible. Gita is above such literature. No mundane book compares Bhagavad Gita. When one accepts Krishna as an ordinary man, the Gita loses all importance. Mayavadi argues that plurality mentioned in this verse is conventional and that it refers to the body. But previous to the verse, such a bodily conception is already condemned. After condemning the bodily conception of living entities, how is it possible for Krishna to place a conventional proposition of body again? Therefore, individuality is maintained on spiritual grounds, and thus confirmed by great acharyas like Sri Ramanuja and others. It is clearly mentioned in many places in Bhagavad Gita. Yeah, it is clearly mentioned in many places of Bhagavad Gita that spiritual individuality is understood by those who are devotees of Lord. ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है प्रभु जी, मतलब प्रभु जी बता रहे थे इसको हमारे पास प्रोजेक्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि it is clearly mentioned in many places in the Gita that spiritual individuality is understood by those who are the devotees of the Lord. Because generally हमारा conception ऐसा है कि हम भगवान को छोड़ के यहाँ पर आए तो भगवान through his material energy has given all condition, full facility and set किए हुए कि we are able to understand and get this conviction that we are only Krishna and we are the all enjoyer. तो ऐसा बहुत सारे conditioning भगवान बना के देते हैं. But gradually when we are able to understand this thing, that's why it is said that those who are the devotees of the Lord, gradually they are able to understand this thing, that there is this places that there is a spiritual individuality. ये जो term भगवान Prabhupada जी use किए, this can be understood only by those who are devotees of it. Otherwise, it's not very easy. Even this thing are very tough to understand. So it is very easy to say, but we also know that not very easy to digest. Those who are envious of Krishna, the supreme personality of God, have no bona fide access to the great literature. The non-devotee approach to the teachings of Gita is something like that of a bee licking on a बहुत गजब का point पांची बताया कि like on a bottle of honey. जैसे non-devotee approach मतलब जनरली मायावती approach के बारे में बताया. जैसे आप bottle of honey को ऊपर से taste करना चाहते हैं, but we cannot taste that because it is a process generally. If we will go into the process, generally जैसे हम कहते हैं कि reaction जब होता है, जैसे acid base reaction NaOH and HCl, तो जैसे NaOH में जो आपके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स टूटते हैं, NaCl that comes out to be salt. So these all reaction happens because these two reagents comes together, एक reaction हुआ, process हुआ, फिर आपका product बना. So this is totally a process. Even this spiritual teaching that we are going through is a process. One cannot have a taste of honey unless one opens the bottle. Similarly, the mysteries of Bhagavad Gita can be understood only by devotees and no one else can taste it. In the fourth chapter of the Gita can be taken by a person who envy the very existence of the Lord. Therefore, the Mayavadi explanation of Gita is the most misleading presentation. Lord Chaitanya has forbidden and all these things. So yeah, basically यहाँ प्रभुपाद जी बहुत heavily यहाँ पर अचानक से हो गए हैं मायावादी की तरफ. So it's a very important verse for Bhagavad Gita 2.12. Next, it is Bhagavad Gita 2.13. हम लोग काफी slow चल रहे हैं, so I think so it will extend to 10 more minutes. So just थोड़ा साथ रहिएगा आप लोग. Just use कर देंगे. 10 more minutes it will extend to. Will it be any issue? No.
Okay, thank you. No problem. Okay. So now the next verse, we are coming to भगवद गीता 2.13. बट यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट मतलब आ गया था कि इसके पहले देखिए, जैसे ठीक है, जैसे इसमें जो इसके पहले भगवान जो है बहुत फिलोसफिकल पॉइंट्स बता रहे हैं, और अचानक से उस फिलोसफी को डाइल्यूट करते हुए मतलब देव इसका जो प्रीवियस श्लोक था, प्रीवियस वर्स था, दैट इज 2.12, नेवर देयर वाज अ टाइम, मतलब ऐसा लूज सा फिलोसफी क्यों मतलब भगवान दिए हैं जिसमें हर तरह कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट हो जाए, तो ये वर्स क्यों ऐसा आ गया? तो एक्चुअली भगवान मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा मतलब मैंने सुना डिवोटी से, भगवान हमें बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग्स फर्दर देने वाले हैं, दैट्स व्हाई ही हैड क्रिएटेड सच सॉर्ट ऑफ लूज फिलोसफी। अब उसके बाद बहुत ही मतलब कंडेंस्ड फिलोसफी इज गोइंग टू गिव इन द कमिंग वर्सेस, दैट इज 2.13, दैट इज देहोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् देहस्तत्र न मुह्यते। ओके, ट्रांसलेशन एंड पर्पट, एनीबॉडी वांट टू रीड? पर्पट कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, छोटा सा ही है। पर्पट मैं रीड करूंगा, ट्रांसलेशन को रीड कर लीजिए प्लीज। Who is going to read? Abhishek Prabhu, Sumam Prabhu, Manindra Black. Okay, I shall read. No issue. So basically यहाँ भगवान कह रहे हैं कि as the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, soul similarly passes into the body, another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. So basically जैसे हम कह रहे हैं कि देहि में उसमें निभा देहि कमारम यौवनं जरा तथा देहं तथा प्राप्तिर् धीरज तत्र न मुह्यते. So dehi of the embodied yatha dehi, dehi, dehi and dehi. Dehi means the person who is having the dehi. देही एंड देह के बीच में आता है, सोल एंड बॉडी के बीच में यहाँ पर बताया है. परपट में if we will come, तो प्रभा जी बता रहे हैं कि since every living entity is an individual soul, each is changing his body every moment, manifesting sometime as a child, sometime as a youth, sometime as an old man, yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. The individual soul finally changes the body at death and transmigrates into another body, and since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjuna on account of death, neither for Bhishma nor for Drona, whom he is so much concerned. Rather, he should rejoice for their changing bodies from old to new ones, thereby rejuvenating their energy. Such changes of body account for the varieties of enjoyment for suffering according to one's work in life. So Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to have spiritual body in the next life, or at least life in the heavenly bodies for superior enjoyment or material existence. So in either case, there was no cause of lamentation. Any man who has the perfect knowledge of the constitution of the individual soul, super soul, nature, and both material and spiritual is called Dhira, or most sober man. Such a man is never deluded by the changing of bodies. और फिर अगेन मायावादी थ्योरी को प्रभा जी फॉर्म में चल रहे हैं यहाँ पे, मायावादी थ्योरी को पूरा उड़ाते थे कि oneness of the spiritual soul cannot be entertained on the ground and the spirit soul cannot be cut into pieces as fragmental position. ठीक है, इसके पहले को हम समझते हैं पहले कि जैसे भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अचानक से इस पॉइंट में इसलिए आए बिकॉज इसके पहले भगवान बताए थे कि हाउ सोल इज एटर्नल. इसके पहले बताया था ना कि मतलब आप भी एग्जिस्ट करते हैं, हम भी एग्जिस्ट करते थे पहले. सो व्हाट वाज एक्सिस्टिंग फॉर द नेचर ऑफ सोल, भगवान ने बताया अर्जुन को. अब इस पॉइंट में भगवान बता रहे हैं कि कैसे जो स्पिरिचुअलिटी है, जो स्पिरिचुअल है, वो इंडिविजुअल है. जो इसके पहले पॉइंट में मतलब उन्होंने बताया था कि मायावादी को खंडन करते हुए भगवान उसका आंसर अभी अभी दे रहे हैं इस वाले 2.13 में, कि कैसे एक्चुअली क्या कैसे हम डिफरेंट हैं और कैसे इट्स नॉट दैट कि भगवान को भी सेम चीजों में गुजरना पड़ता है. बिकॉज सोल को यहाँ पर नीचे बताया गया है कि एज अ नॉर्मल जनरल ऑर्डिनरी पीपल व्हाट हैपेंस, द सोल इज सेम बट दैट बॉडी changes are happening. The difference between the body and the soul here he explained. But this situation is not basically meant for uh, the supreme personality of Godhead. इसके बारे में भगवान प्रभा जी आगे बताएंगे मायावती के बारे में. तो यहाँ पर इस चीज को बताया गया. और एक और जिससे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए थे हमारे
चैतन्य चंद्र इट वॉज बेसिकली दैट, यहाँ पे मुझे बताया गया है कि जिसको ये नॉलेज हो कि जो सोल है, द सोल सिमिलरली passes into another body at death, because वर्बल नॉलेज जैसे मैं आपको यहाँ बैठ के मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने भी सुना और मतलब एक तरफ से वॉमिट कर रहा हूँ knowledge. The realization of this thing is basically to a person who is sober. Means a sober person is not bewildered by such a change because he is having the knowledge. तो sober person, अगर आप sober का मतलब देखिएगा अगर इंटरनेट पे, तो बेसिकली ये होता है कि a person who is not affected by alcohol, सर्च कीजिए अभी, यहाँ दिख जाएगा. सोबर का मतलब सिंपल भी होता है ना भैया? हाँ हाँ, सोबर का मतलब सिंपल भी होता है. सोबर का मतलब द पर्सन इज नॉट अफेक्टेड बाय अल्कोहल. सो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्चुअली इंग्लिश इज नॉट, ये देखिए, सोबर ऑफ अ पर्सन इज नॉट अफेक्टेड बाय अल्कोहल, नॉट फनी, समझ रहे ना, गंभीर. तो ऐसा मतलब चेतन चंद्र को अभी लेक्चर में बताए थे कि इसको हम लोग अदर मीनिंग से भी समझ सकते हैं. इट इज जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट यू कैन टेक कि बेसिकली सोबर कहने का मतलब ये भी है कि जैसे द सोबर पर्सन इज बेसिकली नॉट affected by alcohol. So what is alcohol? Alcohol is addiction. And what is here the addiction? Addiction is addiction to the body. So the person who is actually not addicted to the body is a sober person. That is the indirect relationship बताए थे हमारे. So this is actually the lacuna of this English language कि उसमें एक ही word के condensed meaning है अलग अलग context में. Okay. And Prabhuji was mentioning one very important point here, that जैसे अगर हम इसको इस चीज को देखें कि जनरली जैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इट इज नॉट दैट कि ये रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. जैसे हमारे पास अगर मैं आपको एक केस सिनारियो दूं कि एक लैपटॉप हो और मैं कहूँ कि ये अगर खराब हो जाए तो उसका जो भी हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है और वट एवर द इक्विपमेंट्स आर देयर इनसाइड, अगर उसको हम पार्ट बाय पार्ट चेंज करें, then suddenly it is coming to be a new laptop altogether. And या फिर दूसरा ऑप्शन हो कि मैं डायरेक्टली एक नया लैपटॉप ले लूं. तो there are two different things, right? But in both the cases, the changes is happening. So one change is basically a rapid change कि हमने नया लैपटॉप ले लिया पुराना लैपटॉप की जगह पे, तो एक रैपिड चेंज आया कि अचानक से टोटल नया हो गया. बट एक ग्रेजुअल चेंज क्या है कि हम उसको मतलब उसके हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर रहे हैं, उसके मदरबोर्ड को हटा रहे हैं, उसके जो भी कीबोर्ड है, स्क्रीन वगैरह जो भी एक्सपायर है रिप्लेसेबल, तो उसको हम चेंज कर रहे हैं और उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं. तो इससे भी वो लैपटॉप अपडेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है. बट दैट इज अ ग्रेजुअल अपग्रेड, नॉट अ रैपिड अपग्रेड. बेसिकली इज कंफर्मिंग. एंड बोथ ऑफ द थिंग अगर हम देखें तो जैसे लैपटॉप का एग्जाम्पल है, तो लैपटॉप एग्जाम्पल में कैन एनीबडी कैन से जैसे लैपटॉप ग्रेजुअली अपग्रेड हो रहा है, वैसे ही हमारा जो बॉडी है दैट इज अ ग्रेजुअल अपग्रेडेशन, इट्स नॉट अ रैपिड अपग्रेडेशन. बट हमारे बॉडी के रैपिड मतलब ग्रेजुअल अपग्रेडेशन में देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉमन. हम बॉयहुड से यूथफुल एज में जा रहे हैं. तो यहाँ पे जैसे भगवान बता रहे हैं कि embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth age. Means basically हम बचपन से यूथ और यूथ से फिर ओल्ड में जा रहे हैं. बट व्हाट इज कांस्टेंट हियर? दैट इज द embodied soul is constant. तो वैसे ही जैसे लैपटॉप में अगर हम देखें तो लैपटॉप में हम ग्रेजुअली वी आर फिटिंग सम थिंग्स, बट व्हाट इज कॉमन देयर? कैन एनीबॉडी गेस? हम जो ग्रेजुअल फिट कर रहे हैं मदरबोर्ड, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क चेंज कर रहे हैं, तो समथिंग, lot many changes are happening but something is constant. चलिए मैं आपका समय नहीं वेस्ट करूंगा. So constant is the user. अपडेटेशन. That is the point, but ये बहुत funny सा point है कि अब constant is the user. The user is constant. No, जैसे मैं जो हूँ मेरा लैपटॉप, I am the same person. I am changing the equipment, right? The laptop is changing, but I am the same user. So that's why in the case of body, the user is the soul, but the body is gradually changing from one point to another. Body is changing. That's why body is called as dehi, and dehino is the soul. Dehino is Vinita Dehi. फिर ये पर्पट आप एक बार टाइम निकाल के पढ़िएगा. एक्चुअली वी आर हैविंग लेस ऑफ टाइम. मायावादी को हम वापस से भगवान पूरी तरह से खंडन करते हैं
कि किस प्रकार से पीपल में अंडरस्टैंड कि we and भगवान are same, but Mayavadi theory contain oneness of the spirit which cannot be entertained on the ground, that the spirit soul cannot be pieces as fragment portion. Such cutting into different individual soul uh, would make a supreme cleavable or changeable against the principle of supreme soul which is unchangeable. Yeah, basically सोल एंड सुपर सोल कंसेप्ट कृपाजी एक्सेप्ट मतलब अभी तक करने वाले हैं, यहाँ बहुत हैवी चल रहे थे। हम नेक्स्ट में चलेंगे। कृपाजी अभी जैसे भगवान ये तो बता दिया अर्जुन को कि अर्जुन इज टोटली कंफ्यूज्ड इन दिस केस। तो फिर भगवान उसको फर्स्ट नॉलेज दिए कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। दैट वाज फर्स्ट ही हैड गिवन दैट सीड, दैट वाज ऑन 2.12 बिकॉज़ 2.11 में भगवान उसका मजाक उड़ाया थोड़ा। एंड 2.12 में उन्होंने एटर्निटी ऑफ सोल के बारे में बताया। And 2.13 में उस पर्सन के बारे में बताया, the person who is having this knowledge how is going to be a sober. And 2.14 it is मात्र मात्र स्पर्शे तो कांतेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगम पायु अनित्य ताम तितिक्ष भारत। Anybody want to read the translation? No. So भगवान ऐसा बता रहे हैं, yes, who is that? Please पढ़िए। O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer season. They arise from sense perception, O skin of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Yes. Can you please read the purport also? Yes, true. It was very small purport. Yeah. Please read. Yes, true. 14. O son of Kunti, Purport. in the proper discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearance and disappearance of happiness and distress. According to Vedic injunction, one has to take his bath early in the morning, even during the month of Magha, January, February. It is very cold at that time, but in spite of that, a man who abides by the religious principle does not hesitate to take his bath. Similarly, a woman does not hesitate to cook in the kitchen in the month of May and June, the hottest part of the summer season. One has to execute his duty in spite of climate inconvenience. Similarly, to fight is the religious principle of the Kshatriyas, and although one has to fight with some friend or relative, one should not divide from his prescribed duty. One has to follow the prescribed rule and regulation of religious principle in order to rise up to the platform of knowledge, because by knowledge and devotion only one can liberate himself from the clutches of Maya illusion. The two different name of address given to Arjuna are also significant. To address him as Kaunteya signifies his great blood relation from his mother's side, and to address him as a Bharata signifies his greatness from his father's sides. From both sides, he is supposed to have a great heritage. A great heritage brings responsibilities in the matter of in the matter of proper discharge of duties. Therefore, he cannot avoid fighting. Hare Krishna. तो इसमें बहुत भगवान एक बहुत मतलब गजब का पॉइंट बता रहे हैं। उस तरह उनकी नॉन परमानेंट appearance of happiness and distress, and this appearance of in the due course are like appearance and disappearance of winter and summer. They arise from sense perception. So, O scion of Bharat, I must learn to tolerate them without being disturbed. तो इसमें भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताया है। यू नो व्हाट इज दैट? So the principle is basically that is of tolerance. भगवान यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। अभी तक तो कंफ्यूज था अर्जुन, उसको पहले सोल का कंसेप्ट दिए, उसको एटर्निटी ऑफ सोल बताया, एंड फिर उसको बताया कि कैसे सोल इज इंडिविजुअल, एंड देन आफ्टर उसको बता रहे हैं कि अब जो हैप्पीनेस डिस्ट्रेस व्हाटएवर इज हैपनिंग ऑन द बॉडी लेवल, इट इज हैपनिंग
maybe we can be in any position, but one must learn to tolerate this thing. So tolerance के बारे में यहाँ पर बता रहे थे. बट क्या प्रभा जी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ बताए. बट बहुत ऑलरेडी हमने सब सुने कि what we have to do, we have to take bath, it is very cold. Still people follow their principles when they have to go to the kitchen. So just like this, we have to whatever the duties one is prescribed in their sort of profession, occupation, work, whatever it is there. So without any sort of thing, they have to follow undoubtedly. Sai Prabhupada ji bata raha hai, one has to execute his duty in the spite of climatic conveniences. In order to fight the religious principle of Kshatriyas, one has to fight with some friend or relative. One should not deviate from the prescribed duty. One has to follow the prescribed rules and regulation of the religion without any reason. प्रभा जी यहाँ पर अभी अचानक से हुआ क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिएगा. तो प्रभा जी इसके पहले बॉडली कंसेप्शन से अर्जुन को उठा रहे थे एंड उसको लेके जा रहे थे स्पिरिचुअल सोल की तरफ. और अचानक से आप यहाँ अगर देखिए तो प्रभा जी मतलब भगवान जो है 2 पॉइंट को हाईलाइट किए नीचे परपोर्ट में कर प्रभा जी, दैट इज कौंतिया एंड भारत. तो कौंतिया एंड भारत मीन्स व्हाट? कौंतिया मीन्स who want to say what is the meaning of Kaunteya? Son of Kunti. Son of Kunti. And Bharat, Bharat means the king of this world, right? Bharat Varsh. Yes, yes. Again. So these are the two things Prabhupada ji से यहाँ बताए. Two different addresses जो यहाँ पर दिया गया है. Bharat signifies greatness from, sorry, not king, but basically from his father's side means basically his heritage was the people who has ruled through this whole Bharat. Basically not him, उसको नहीं बता रहे, but his लाइनेज को बता रहे हैं, जिस लाइनेज से अर्जुन आ रहा है. तो अचानक से सोल वाले कंसेप्ट से प्रभा मतलब जो भगवान है वो बॉडली कंसेप्ट पे क्यों आ गए ऐसा? तो प्रभा जी उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं भरपूर, क्योंकि अचानक से तो सोल वाला कंसेप्ट बता रहे थे बट अचानक से फिर उसको बॉडली कंसेप्ट पे कैसे ले आए, क्यों लेके आए? ये एक्चुअली भगवान का ट्रिक है ऐसे किसी को परसुएड करना है. तो उसको प्रभा जी बता रहे हैं कि क्यों ऐसा बताए. बिकॉज ये 2 डिफरेंट टाइप्स इसलिए बताया बिकॉज एक तो उससे ये हुआ कि उसको अपने ब्लड रिलेशन का मदर साइड आया और दूसरा एक आया कि फ्रॉम फादर साइड उसको मतलब ये सिग्निफिकेंस मिला. फ्रॉम बोथ द साइड ही इज सपोज्ड टू हैव अ ग्रेट हेरिटेज. अ ग्रेट हेरिटेज ब्रिंग्स रिस्पांसिबिलिटी इन द मैटर ऑफ प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी. यहाँ प्रभा जी बता रहे हैं कि हमारा जो फॉल्स ईगो है वो फॉल्स ईगो को मतलब ऐसा चरण चरण तो अपने लेक्चर में बता रहे थे कि मतलब ईशो उपनिषद में ऐसा बताया गया है कि व्हाट वी हैव टू डील डू विद आवर फॉल्स ईगो. वी डोंट हैव टू इन्फ्लेट. ऐसा नहीं कि हमको अपने फॉल्स को बढ़ाना चाहिए कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वैसा है वैसा है, हम ये करें अपने लाइफ में, हमने ऐसा किया. और नीदर वी हैव टू पिंच इट कि ऐसा हमको कि बहुत छोटा और हम तुच्छ से प्राणी है, बट रादर वी हैव टू लर्न हाउ टू यूज दैट थिंग, हाउ वी हैव टू पैड दैट थिंग. प्रभा जी इज बेसिकली मतलब इस चीज को हाईलाइट करेंगे. भगवान ने इस चीज इस पॉइंट को यूज किया है यहाँ पर अर्जुन का कि अचानक से उसको सोल कंसेप्ट से बॉडली कंसेप्ट लाए so that to make him believe that आप ये कर सकते हैं. And how this thing which you are having as a heritage, it is going to be all case it is going to be good. It is not going to be bad for you because it's not just for you because it's coming in the lineage from your mother's side कौनतेया हमने कहा and from your father's side भारत. तो 2 चीज को सिग्निफिकेंस यहाँ पे दिया. कहते हैं भगवान मास्टर ऑफ दिस यूनिवर्स. And the last purport of the day that we are going, that is Yam Hina, that is 2.15. Yam Hina Prathayanti Ete Purusam Purusarva Sama Dukha Sukham Dhiram So Amritavya Kalpate. Translation and purport. The translation I am going to read. Purport, anybody can volunteer. Translation is, O best among the men, Arjun, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. Basically, the same extension of 2.13 जो भगवान ने बताया था सोबर मैन के बारे में. Anybody can read this purport? Rajwal Abhishek. जल्दी से कर लीजिए, अभी खत्म होने वाला नहीं. ठीक, मैं पढ़ता हूँ. Anyone who is steady in his determination for the advanced stage of spiritual realization
and can equally tolerate the onslaughts of distress and happiness is certainly a person eligible for liberation. In the Varnasam institution, the fourth stage of life, namely the renounced order, sannyas, is painstaking situation, but one who is serious about making his life perfectly surely adopt the sannyas order of life in spite of all difficulties. Difficulties usually arise from or having to severe family relationship to give up the connection of wife and children, but anyone is able to tolerate such difficulties. Surely his path to spiritualization is complete. Similarly, in Arjuna's discharge of duty as a Kshatriya, he is advised to persevere, even it is difficult to fight with his family member or similarly beloved person. Lord Chaitanya took sannyas at the age of 24 and his dependents, young wife as well as old mother, had no one else to look after them. Yet for a higher cause, he took sannyas and he was a steady in the discharge of higher duty. That's why this is a way of achieving liberation from material bondage. तो बहुत ही बड़ा purport of that is sannyas and how this is gradual इसको हम कह सकते हैं जैसे चतुर जी को अपने बच्चे ने बताया था. It was not that भगवान यहाँ पर कृपा जी बोल रहे हैं कि it is going to be a sudden change, but gradually तो हमारा वर्णाश्रम institution है was basically meant for commensurate order to this last order that is the sannyas in our last moment of life so that we can be detached from this material bondages and we can adopt the spiritual cause. And why it is so important because unless and until somebody in spiritual platform gradually or somehow he is not able to get free from this duality nature of this world that is happiness distress ये हमेशा जैसे कहा गया विंटर सीजन्स की तरह the सीजन हर साल बदलते हैं अभी गर्मी का मौसम है फिर ठंडी का मौसम फिर गर्मी का मौसम ठंडी का मौसम this is a cycle which will continue so it can be overcome and only when we are out of this planet इस situation से जब हम निकल पाए इस चीज को हम ट्रांसलेट कर पाए otherwise it's not very much possible so that's why यहाँ पर actually भगवान इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं अर्जुन को ग्रेजुअली फिर अगेन इन फ्यूचर भगवान अर्जुन को मोटिवेट करने के बाद भगवान विल कंटिन्यू मेक हिम एलिजिबल टू डू हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी विदाउट थिंकिंग ऑफ हिज मटेरियल बॉन्डेजेस yes whatever it was a small thing actually it was not a class basically I was also learning मैं भी टाइम नहीं मिलता है मेरे को भगवद पढ़ने का but I'm really thankful to Tritik Prabhu he had given me this opportunity एंड इसी बहाने मेरे को चैतन्य चरण प्रभु एंड बाकी बहुत सारे लेक्चर्स सुनने को मिला आई एम रियली थैंकफुल टू हरे कृष्णा। तो मेरा आवाज आ रहा है आप लोग को? थैंक यू जनार्दन प्रभु, थैंक यू सो मच। तो मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ अभी तक जब जनार्दन प्रभु ने अभी तक क्या हम लोगों को समझाया। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, तो उन्होंने देखा कि वो अपने परिजनों को देखते हैं युद्ध में अपने विपरीत उनके खिलाफ लड़ते हुए, तो वो विचलित हो जाते हैं कि क्या मतलब कैसे मैं उनको मार सकता हूँ, मेरे गुरु हैं वो लोग, मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे बच्चे के साथ, तो मैं मेरे बच्चे समान लोग भी हैं उधर, कैसे मैं उनको साथ लड़ सकता हूँ। तो फिर कृष्ण उनको समझाते हैं। तो कृष्ण उनको सबसे पहले समझाते हैं कि हमने ऐसे 11वें नंबर श्लोक में देखा कि वो ऐसे कि तुम जिसके लिए वो मौन कर रहे हो, मौन मतलब तुम जिसके लिए शोक मना रहे हो वो शोक मनाने तुल्य ही नहीं है। तो जनार्दन प्रभु ने बताया कि जो हमारे इमोशंस है, तो बताया हमारे पास ऐसे जनार्दन प्रभु ने बताया 3 चीज है। एक तो हमारा ग्रॉस बॉडी मतलब उसको कहते हैं जो हमारे 5 तत्वों से बना है। जो 5 तत्व है जो इस पृथ्वी में, उससे जो हमारा बॉडी बना है, जो इसी पृथ्वी में मिल जाएगा, जैसे हमारा हार्ड मास का शरीर, खून, ये सब, इसको कहते हैं ग्रॉस बॉडी, जड़ शरीर शायद। और फिर दूसरा है हमारा सटल बॉडी जो कि है मन, बुद्धि, अहंकार, इसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और तीसरा है हमारा सोल। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो इन दोनों के बीच में आता है। बीच में आता है मतलब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उससे हमारे इमोशंस दिखाई देते हैं, समझ रहे हैं? तो हमारे इमोशंस, हमारे जो हमारा शरीर है उस शरीर से भी हमारे इमोशंस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और हमारे सोल से भी हमारे इमोशंस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में सोचिए आपका या आपको कोई
बहुत ही अच्छा खाना अच्छा लगता है, समोसा अच्छा लगता है, तो देख के समोसा अगर आपके पिताजी लाएंगे तो देख के आपको बहुत खुशी होगा अंदर से। तो वो आपके वो समोसा है वो आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। तो दैट इज आपके, और मतलब वो क्या है, आपका जो इमोशंस है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर मटेरियल बॉडी, वो आपके जड़ शरीर से कंट्रोल कर रहे हैं वो इमोशन। और दूसरा है जो हम लोग भगवान का आरती करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो उससे भी हम लोग को एक आनंद आता है। और वो आनंद हमारे, क्योंकि हम लोग भगवान का नाम सुन के हम लोग को आनंद आ रहा है, तो वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ नहीं, समझ रहे हैं? तो वो भी आनंद, तो इसीलिए जो सूक्ष्म शरीर है, जो ये इमोशंस हम लोग को दिखाते हैं, तो वो दोनों साइड से आ सकते हैं। या तो हमारे मटेरियल साइड से आ सकते हैं, हमारे जो जड़ शरीर है, जैसे हमारे फैमिली से आ सकते हैं, हमको मतलब कोई भी मटेरियल चीज से आ सकते हैं। और दूसरा हमारे स्पिरिचुअल शरीर से, मतलब हमारे स्पिरिट्स, एज अ स्पिरिट सोल भी हमारे कुछ इमोशंस हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको कहते हैं वो बीच में आता है। तो वो बता रहे हैं कि तुम जो इमोशन शो कर रहे हो दैट इज कमिंग फ्रॉम योर मटेरियल बॉडी, और हमारे मटेरियल साइड से कोई भी इमोशंस हम लोग को हमेशा नीचे खींचेंगे। लेकिन अगर हम लोग, हमारे इमोशंस आ रहे हैं फ्रॉम आवर स्पिरिट सोल, तो वो हम लोग को हमेशा ऊपर की ओर, हमारे जो चेतना है उसको हमेशा उसको, उस इमोशन, वो सारे इमोशंस हमारे चेतना को विकसित करते हैं। तो हमने देखा कि वो बोला कि कृष्णा बोल रहे हैं कि तुम जिसके लिए शोक मना रहे हो, शोक मनाने के लिए नहीं है। फिर वो बता रहे हैं कि जब सेकंड 12वें श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा कोई टाइम ही नहीं था कि जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, और यहाँ प्रेजेंट कोई राजा नहीं थे। तो जनार्दन प्रभु ने बताया कि कैसे भगवान इस श्लोक से ही पूरा मायावाद का खंडन कर रहे हैं। मायावाद का फिलॉसफी ही है कि हम सभी भगवान हैं, और बस क्योंकि हम लोग के अंदर इतने सारे, हमारे अंदर काम क्रोध, हम लोग के अंदर इतने सारे बुराइयां हैं, इसलिए हम लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। लेकिन जब हम लोग शुद्ध हो जाएंगे, जब हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तो हम लोग भगवान बन जाएंगे। लेकिन इस श्लोक में जैसे भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं भी, मतलब ऐसा कोई टाइम ही नहीं था जब तुम नहीं थे, और ऐसा कोई टाइम ही नहीं था जब ये राजा नहीं थे, और ऐसा कोई टाइम ही नहीं था जब मैं नहीं था। मतलब ये तुम, राजा और मैं, हम तीनों अलग अलग हैं। और आगे बता रहे हैं कि इन फ्यूचर भी ऐसा कोई टाइम नहीं होगा कि तुम सब नहीं रहोगे। इन फ्यूचर भी ऐसा कोई टाइम नहीं रहेगा कि तुम सब नहीं रहो। तो अगर हम लोग मायावाद फिलोसफी है कि अगर हम लोग क्या होता है, हमारे मृत्यु के बाद हम लोग भगवान बन जाएंगे या भगवान के शरीर में घुस जाएंगे, तो इन फ्यूचर में हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। लेकिन भगवान इसको पूरा पूरा इसको काट खंडन कर रहे हैं कि नहीं, तुम सब इंडिविजुअल, तुम सब जो है, वो लोग, हमारे जो गुण है हमारे अंदर, वो क्वांटिटी वाइज भगवान के गुण से कम है, लेकिन हम लोग सब इंडिविजुअल है और सब भगवान के ही अंश है। फिर 13वें नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि तब, जैसे 12वें श्लोक में बताया कि हम लोग हमेशा ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि, मतलब अगर तुमने अपने परिवार वालों को मार दिया या तुमने अपने गुरु को मार दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएंगे, वो हमेशा ही थे और हमेशा रहेंगे ही। और फिर 13वें नंबर श्लोक बता रहे हैं कि जो हमारा शरीर है वो, जैसे देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कि देहिनो मतलब, देही मतलब हमारा सोल इस देह के अंदर है, देही इस देह के अंदर है। जैसे आपको, जैसे अगर मेरे हाथ में चोट लग गया, तो मैं बोलता हूँ मेरे हाथ में चोट लगा, मैं समझ रहे हैं, ये मेरा हाथ है, हाथ मैं नहीं हूँ, समझ रहे हैं? तो मेरा हाथ में चोट लगे, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को चोट लगा, ये मेरे शरीर को चोट लगा है। अरे जैसे जनार्दन प्रभु ने लैपटॉप के उसमें बताया कि अगर आपका लैपटॉप अगर आपका खराब हो गया, तो ये मतलब नहीं है कि आप खराब हो गए, वो मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो आपका लैपटॉप है, वो आपके केयर में है और वो खराब हो गया। तो बता रहे हैं कि ये जो हमको जो शरीर मिला है भगवान द्वारा, वो हमेशा टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। और साइंस में भी अगर आप देखो, साइंस में भी बता रहे हैं कि हमारा जो शरीर है, जो हमारे शरीर जो सेल से बना है, सेल से टिश्यू बनता है, एक हमारे जो शरीर है
सेल से बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से हमारा पूरा शरीर बनता है। और वो सेल्स कंटिन्यूअसली मरते रहते हैं और फिर नया बनता रहता है, मरते रहते हैं, नया बनता रहता है। और एक टाइम मतलब 7-8 साल बाद हमारा जो शरीर होता है उसमें पूरा जितना भी सेल है वो सब नया रहता है, पुराना वाला सब खत्म हो जाता है और नया बनता है। हमारा एक इट्स लाइक हम लोग को एक नया शरीर मिल गया। बता रहे हैं कि हम लोग साइंस से भी हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि जो शरीर हम लोग को मिला है वो हम नहीं है, वो हम लोग को मिला है, हमारे केयर में है। और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। सिर्फ टाइम टू टाइम ही नहीं, वो मृत्यु के बाद भी चेंज होता रहता है। मृत्यु के बाद आपको एक और शरीर मिलेगा। तो जो आदमी सोबर मतलब जो आदमी धीर है, धीर धीर मतलब जो सुख और दुख में समान, तो जिसको सुख और दुख में भी वो उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मतलब वो सुख में भी न्यूट्रल। मतलब उसको ज्यादा, हाँ, तो वो धीर है, उसको इन सब से फर्क नहीं पड़ता है। फिर 14 नंबर श्लोक में जनार्दन प्रभु ने ऐसे बताया कि हम लोग फिर क्या बोलते हैं, ये जो जो इमोशंस है, जो हमारे शरीर से जो इमोशंस आते हैं, जैसे ने बताया कि हमारे शरीर से कुछ इमोशंस जनरेट हो सकते हैं। ऐसे आपकी ऐसे आपके शरीर से, जैसे आपके माता पिता के लिए आपके लिए बहुत प्रेम होगा, ठीक है, तो वो आपके शरीर से जुड़ा हुआ इमोशंस है, ठीक है। या फिर आप अगर आपका स्कूल में आप टॉप कर गए, समझ रहे हैं, तो वो भी आपके शरीर से जुड़ा हुआ इमोशन है, क्योंकि आप अपने शरीर को, आप इस शरीर में एक स्टूडेंट है, ठीक है। आप असली में स्टूडेंट नहीं, मतलब इस शरीर में आप एक कक्षा में पढ़ते हैं, आप 7th क्लास में पढ़ते हैं, तो उस वो जब टॉप किया तो आपको खुशी मिल रहा है। तो बता रहे हैं जो शरीर से जुड़े हुए जो इमोशंस हैं उसमें आपको कभी ना कभी डिस्ट्रेस मिलेगा, कभी ना कभी हैप्पीनेस मिलेगा ही, ठीक है। तो वो जो बोल रहे हैं कि जो आदमी धीर है तो ये आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, तो आदमी जो धीर है उससे वो उन सबको ये इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। धीर है मतलब जो जानता है कि ये मेरा शरीर है, मैं ये शरीर नहीं हूँ। फिर 15 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि जो ये समझ पाता है, जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, जो सुख और दुख में, तब जो शरीर द्वारा जो हम लोग को इमोशंस मिल रहे हैं उसमें भी जो समभाव रहता है, मतलब इक्विपॉइस रहता है, वही लिबरेशन के लिए एलिजिबल है। लिबरेशन मतलब कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे ऊपर उठना। जगह हाँ, अगर हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा है, मुझे मेरे केयर में है। तो हम लोग को सुख और दुख से ज्यादा, जो शरीर द्वारा जो सुख दुख मिल रहा है उससे ज्यादा हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। तो सुख दुख जैसे क्या बोलते हैं, अब हम लोग शास्त्र में भी पढ़ते हैं कि कभी कभी चैतन्य, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे श्री राम भी कभी कभी व्याकुल हो जाते थे जब उनको सीता, मतलब जब सीता को लेके चले गए तो श्री राम व्याकुल हो गए थे। फिर हम महाप्रभु के कहानी में पढ़ते हैं कि महाप्रभु भी कभी जब महाप्रभु के जो भक्त लोग हैं, जब वो महाप्रभु उनको छोड़ के जाते हैं तो वो लोग भी बहुत डिस्ट्रेस हो जाते हैं। सो ये उस डिस्ट्रेस का बात नहीं हो रहा है, क्योंकि वो डिस्ट्रेस है स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस, वो आपके स्पिरिट सोल से निकला हुआ इमोशंस। तो ये जो इमोशन, ये जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस का बात हो रहा है वो हमारे मटेरियल बॉडीज के द्वारा दिए गए हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस का बात कर रहे हैं। तो आप लोग को मतलब ये समझ में आया अभी तक? हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा था? यस यस यस। मेरा मुंह थोड़ा आज सूजा हुआ के है तो आप लोग डरिएगा मत। हाँ हाँ, अचानक फिर से हुआ लगता है। तो थैंक यू बोलो जनार्दन हनी को भी भाई। ब्रो, हम धन्यवाद लोग देना को चाहते हैं, जनार्दन को मैं एनलाइटन करने के लिए। हरी बोल। वुड लाइक। जनार्दन प्रभु को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। जनार्दन प्रभु, किन्हीं का कोई सवाल है, क्वेश्चन है अभी तक? कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं हेलो, प्रभु जी। हरे ठीक है, कृष्ण तो प्रभु जी। जनार्दन प्रभु, हेलो, इससे रिलेटेड नहीं है हरे बट एक कृष्ण प्रभु। क्वेश्चन है। ये हाँ हाँ। मेरा लैपटॉप जो है ना वो हम्म मतलब कि जैसे ही हम जल्दी जल्दी घर आए, लैपटॉप को हम्म मतलब बंद करके एग्जाम दे के चल गए थे खेलने। उसके बाद आए हम्म तो पूरा गर्म था, और फिर ना जब देखें तो उसका बैटरी भी नहीं था।
तो कुछ प्रॉब्लम हो अरे गया क्या? यू आर ऑल फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है रविंद्र, आपके उसके लिए ना हम आपसे सेपरेटली कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस कॉल के बाद। ठीक है ठीक भैया। है, ठीक है। देखिए मतलब रविंद्र प्रभु का जो लैपटॉप है वो खराब हो गया, तो अभी रविंद्र प्रभु थोड़ा डिस्ट्रेस में है। तो It was a practical class. हाँ, तो रविंद्र प्रभु आप समझ सकते हैं कि मटेरियल शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी चीज जो है वो सुख दुख देता ही रहेगा, समझ रहे हैं? तो धीर आदमी है, वो समझ, उसको पता रहता है कि ये तो सब टेम्पररी है, तो उसको इस सबसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी हम आपका लैपटॉप देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे जनार्दन प्रभु को हम लोग के लिए समय निकालने के लिए। बिना उनका लाइट चला गया फिर आपको भी भी वो, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। Yes, yes, तो उनका definitely. लाइट चला गया उसके बाद भी धन्यवाद, वो, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, yes. लाइट जाने के बाद भी फ्लैश लाइट ऑन करके हम लोगों को क्लास दे रहे थे प्रभु जी। इतना डेडिकेशन है इनका। ठीक है प्रभु, तो हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ जनार्दन प्रभु का धन्यवाद देना चाहेंगे। तो For हरे Jyoti Prabhu also. कृष्णा हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, हरे कृष्णा हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। धन्यवाद सबका। आप लोग नेक्स्ट क्लास में भी, धन्यवाद जनार्दन। Jyoti Prabhu also. Thanks so much for engaging. थैंक यू। Thanks for both. आप लोग इससे अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग, ठीक है, धन्यवाद। फिर आपको बात